Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you again in your maths class. We are studying chapter 14 factorization from class 8th maths. In our previous video we discussed how to factorize a given algebraic expression using identities. We are very well aware of the 4 algebraic identities that we learnt in chapter 9. Now today we are going to do the first 2 questions from exercise 14.2 and we will see whether we are able to apply the identities or not. Before we start, let me remind you, you have to try all these questions first yourself and then you will be checking your answers from here. Let us start with the very first question from exercise 14.2. Factorize the following expressions. Here we have been given some expressions, we have to factorize them, that is we have to split them into its factors. Now the question arises which method to follow. We know 3 methods of factorization. First is the method of common factors, then we know to factorize by regrouping the terms, and now also we know to factorize by using identities. We will first observe the given expression and then decide which of the 3 methods we have to apply. The first expression is a square plus 8a plus 16. Now observe this expression and look here at the first term a square. It is a perfect square. A का square हो रहेगा. Then look at this constant term 16. Again it is a perfect square. It can be written as 4 square. So we can write this expression as a square, the first term, and here we can take 16 as 4 square. Now if we multiply here a and 4 by 2 in the middle, 2 into a into 4, and let us check whether this product is the same as the center term. 2 4s are 8 into a. Yes, it's 8a, the center term of the given expression, and so here we get this expression of the form a square plus 2ab plus b square. ये इस फॉर्म का एक्सप्रेशन हो गया और अब हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं एज a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को किस तरह फैक्टराइज करेंगे. वी विल टेक a फ्रॉम हियर, 4 फ्रॉम हियर, एंड सिंस हियर वी हैव प्लस a plus 4 and then whole square, and this is the required factorization of this given expression. Easy. Next now we can take p square minus 10p plus 25. Again look at the expression. There are 3 terms. So obvious है कि third identity apply नहीं होगी. Third identity is applied when there are only 2 terms. Here we are having 3 terms. Here we don't find any factor common, and so the method of common factors is not applicable here. Again we cannot regroup the terms because if we regroup the first 2 terms, the third one will be left out. Here we can look out for the identity and just have a look. The first term p square, yes, it's a perfect square, and this last term 25 can be written as 5 square, again a perfect square. Now if we multiply these two by 2 into p into 5, here we have plus, here we have minus, and now let us check whether this product is equal to 10p or not. We see 2 5s are 10 into p, yes, it's 10p, and so this expression given one is written as this expression, and this is similar to a square minus 2ab plus b square. इस फॉर्म का ये एक्सप्रेशन हो गया और ये किसको रिजेंबल कर रहा है? द सेकेंड आइडेंटिटी, and from here we can write this expression as a minus b whole square, and since we have this relationship, from here we get the factorization. We take p from here minus and then 5 from here and then whole square, and so this is the required factorization of this given expression. So simple, so easy, isn't it? Then we take the next one. Here we see that no factor is common. 25, 30 and 9, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है. तो आप देखिए 25m स्क्वायर, लेट मी राइट द क्वेश्चन वंस अगेन, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9. आप देखेंगे फर्स्ट टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर है. किसका स्क्वायर होगा ये? 25 इज 5 स्क्वायर and m square is nothing but m square, so 5m whole square. This 25m square can be written as 5m whole square. यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं 5 और m, और इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है. अगर आप सिर्फ 5m square लिखेंगे, this means only m is getting squared, 5 is not getting squared, तो वो गलत हो जाएगा.
5 square will be 25 and m square will be m square. And here we see 9 can be written as 3 square. Since 3 is a single value, so if we don't apply the bracket, then also it's right. Now if we multiply both these by 2 into 5m into 3 and check at this stage whether this product is same as 30m or not. Check कीजिए चलिए. You will see that 2 5s are 10 into 3 it's 30m. Yes, the two products are same. And so here we see that this expression is of the form a square plus 2ab plus b square. ये इस फॉर्म का है और ये कौन सी आइडेंटिटी को रिलेट कर रहा है? The first one. And so we can write it as a plus b whole square. और क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी है, since we have this relationship, from this one we can get the factors 5m from here, 3 from here, and since we have a plus here, we will be writing plus here and whole square. And now if we want to see the two factors separately, both will be same. 5m plus 3 the first factor, 5m plus 3 the second factor. ये हो गए factors इस दिए हुए expression के. Okay, it's easy. Next we can take here this question. Again here we see no factor is common to all the three terms. तो common factor method apply नहीं होगा, regrouping भी apply नहीं कर सकते. यहाँ हम देखते हैं कि क्या identity apply हो सकती है. उसके लिए आप first term को देखिए. Yes, it's a perfect square and again this term is again a perfect square. तो यहाँ हम identity apply कर सकते हैं. Let us rewrite the question first. 49y square plus 84yz plus 36z square. Now this 49 is 7 square, so we write 7 here and then y. 7y whole square will be 49y square. Similarly here 6z whole square. 6 square is 36 and z square will be z square. Now if we multiply both these by 2 into 7y into 6z. अब इस स्टेज पे आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए कि क्या ये 84yz है या नहीं. अगर नहीं है तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर पाएंगे. सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 7s are 14, 14 6 are 84 yz. Yes, the two products are equal and so here we can easily apply the identity. अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 86yz, सपोज कीजिए कि 86yz होता, पर हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है 84yz, तब हम ये आइडेंटिटी आगे अप्लाई नहीं कर पाते. ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. इसीलिए हम पहले यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि ये सेंटर टर्म के इक्वल है या नहीं है. बट सिंस it is equal, let me remove this part. We will now see this is of the form a square plus 2ab plus b square. यहाँ हम आइडेंटिटी भी मेंशन कर रहे हैं, इस फॉर्म में है और इसको हम a plus b whole square के फॉर्म में लिख सकते हैं. And from here we can take 7y. Here we have 6z और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेंगे बीच में 7y plus 6z whole square. तो यहाँ जिसका स्क्वायर हो रहा है वो टर्म लेंगे पहले, ये स्क्वायर जिस टर्म का है वो टर्म लेंगे एंड देन वी विल हैव प्लस इफ़ हियर वी हैव प्लस. अगर यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगाते और तब सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई होती एंड देन वी टेक द होल स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस वन. Now here we see that there is a common factor. Just look at it. Which factor is common? Yes, 4. 4, 8 and 4. All the three come in the table of 4. तो यहाँ पर 4 common factor है. तो पहले हम इसे बाहर common ले लेते हैं. We write the question 4x square minus 8x plus 4. First we take 4 as the common factor out. Then what will be inside? x square आएगा यहाँ पर, 4 बाहर, x square अंदर, minus. अब 4 2s are 8, so here we write 2 and then we have x and then 4 is outside. What will be inside now? You can think of 4 as 4 into 1. अब 4 तो बाहर है तो यहाँ क्या आएगा? 1. तो every time whenever the complete factor is outside as the common factor, in place of it we can write 1 inside the bracket. And so this is the factorization. Is it so? Can't we factorize again further? We can. Here look at this expression. क्या हम इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते? करेंगे हम. देखिए यहाँ 4 तो बाहर है ही.
अब ये x का स्क्वायर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये 1 भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1 itself, एंड सो हियर इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट 1 स्क्वायर। और अब आप यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और इन दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू एक्स इंटू 1, और चेक कीजिए क्या ये प्रोडक्ट यहाँ मिडिल टर्म के इक्वल है या नहीं। तो आप देखेंगे बिल्कुल 2 1 2 इंटू एक्स इट्स 2x, और यहाँ भी 2x है। तो ये कैसा एक्सप्रेशन हो गया? ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म का एक्सप्रेशन हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह आप x देख सकते हैं और b की जगह 1 देख सकते हैं आप, और फिर यहाँ से सेकेंड आइडेंटिटी से हम a माइनस बी होल स्क्वायर इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। सिंस वी हैव दिस आइडेंटिटी, दिस एक्सप्रेशन विल बी रिटन एज x फ्रॉम हियर 1 फ्रॉम हियर, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस, सो होल स्क्वायर, x minus 1 whole square, and we have 4 also outside. So here we have factorized the given expression. यहाँ पर हमने दो मेथड्स अप्लाई किए, एक तो कॉमन फैक्टर मेथड और फिर हमने आइडेंटिटी भी यूज़ की। ओके, नेक्स्ट वी टेक दिस वन। अगेन हियर वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी कॉमन फैक्टर। आप देखेंगे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए हम उसको बाहर नहीं लेंगे। अब चलते हैं और एक एक टर्म को देखते हैं। ये फर्स्ट टर्म 121b स्क्वायर, think of the term and tell me whether it is a perfect square or not. स्क्वायर्स तो आपने याद किए ही होंगे, बार बार आपको कहा था, आपको पता होगा 121 is 11 square and so this is a perfect square. Again this term is a perfect square term and so here we can write 121b square, we can write it as 11b whole square, 16c square, इसको हम लिख सकते हैं 4c whole square. And now if we multiply both these by 2, 2 into 11b into 4c, यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि ये 88bc के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी 22 and into 4 it will be 88bc. Yes, this product is equal to 88bc. तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही तो फॉर्म आ रहा है, देखिए आप, जहाँ a की जगह है 11b और b की जगह है 4c। आप यहाँ पर सिम्बल्स चेंज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी b दिख रहा है, सो वी कैन चेंज द सिम्बल्स इन दिस वे ऑल्सो so that there is no confusion. a square minus 2ab plus b square, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि small b यहाँ क्वेश्चन में भी है, तो maybe you may get confused in relating the two. So here we can show the identity by this form. And what we see in place of this capital A, here we have 11b, in place of this capital B we have 4c, and this can be taken as a minus b whole square using the second identity. Since we have this relationship, from here we get 11b, फर्स्ट टर्म हो गई, यहाँ से 4c और बीच में माइनस है तो माइनस 11b minus 4c whole square. This is the factorization of the given expression. Okay, next we have this one, l plus m whole square minus 4lm. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट आइडेंटिटी से रिलेटेड एक्सप्रेशन दिख रहा है. We first write the question, l plus m whole square minus 4lm. इसको आप फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करते हुए एक्सपैंड कर सकते हैं. तो इसे कैसे लिखेंगे? l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर. फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ की है हमने और आगे माइनस 4lm तो क्वेश्चन में पहले ही है. आप यहाँ लिख दीजिए यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी. फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर दिया है. अब यहाँ पर आप देखिए दो लाइक टर्म्स हैं. आइडेंटिफाई दोज लाइक टर्म्स. यू विल सी दैट 2lm एंड माइनस 4lm, दीज आर लाइक टर्म्स. जहाँ पर वेरिएबल्स भी सेम है, उनकी पावर्स भी सेम है. हमने 9th चैप्टर में पढ़ी थी कि लाइक टर्म्स किन्हें कहते हैं और हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. व्हाट वी सी हियर, l स्क्वायर विल बी एज इट इज़. Here we can take 2lm minus 4lm, इनको एक साथ ले लिया and then plus m square. लाइक टर्म्स को एक साथ ले लिया.
और अब हम इनको ऐड करें तो क्या मिलेगा, देखिए 2 minus 4 इट विल बी -2 एंड सो वी कैन राइट -2 LM प्लस m स्क्वायर। ठीक है, इनके कोएफिशिएंट्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर 2 minus 4 इट विल बी -2 और वेरिएबल पार्ट तो एज इट इज़ आ जाएगा LM and then plus m square. Now look at this expression. It is resembling the second identity. Second identity के केस में क्या था, a square minus 2ab plus b square, यही तो है। और ये वही फॉर्म है, देखिए a square minus 2ab plus b square वही फॉर्म है। a की जगह l है और b की जगह m है। और इस एक्सप्रेशन से हमें फैक्टर्स क्या मिलते हैं, a minus b होल स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ क्या मिलेगा, l minus m whole square, and so this expression has these factors. This is the answer. यहाँ पर हमने दो आइडेंटिटीज यूज़ की, पहले फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करके एक्सपैंड किया और फिर हमने सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिला हमें, उससे हमने देखा कि सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए वी आर गेटिंग these factors. Okay, next we take a raised to power 4 plus 2a square b square plus b raised to power 4. यहाँ पावर 4 हो रही है, सोचिए कैसे डील करें इससे, 2a square b square plus here we have b raised to power 4. ये जो पावर 4 है इसको स्प्लिट कर देते हैं 2 into 2, स्प्लिट करते हैं क्योंकि हम स्क्वेयर यूज़ करना अच्छे से जानते हैं। वी वॉन्ट टू डील विथ स्क्वेयर्स, इन प्लेस ऑफ दिस पावर 4 वी वॉन्ट टू डील विथ स्क्वेयर्स, तो 4 को स्प्लिट कर देते हैं 2 into 2. वी कैन राइट दिस एज a square whole square plus here we have, let me write it afterwards, here we can write b raised to power 4 as b square whole square. फर्स्ट टर्म में हमने 4 को स्प्लिट कर दिया 2 into 2 और यहाँ इस लास्ट टर्म में भी 4 को स्प्लिट कर दिया 2 into 2. तो अब क्या देख रहे हैं हम, ये फर्स्ट टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बन गई, a स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, और ये लास्ट टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गई, b स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है। तो ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं। और अब हम सेंटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से तो हमें मिलेगा a स्क्वायर और यहाँ से हमें मिलेगा b स्क्वायर। सो 2 into a स्क्वायर into b स्क्वायर, दिस इज सेम एज दिस सेंटर टर्म, मल्टीप्लाई कीजिए सेम ही रहेगा। सो हियर व्हाट एक्सप्रेशन आर वी सीइंग, वी आर सीइंग दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्म हमें मिल रहा है। a की जगह अब क्या है, इस कैपिटल A की जगह क्या है, स्मॉल a स्क्वायर, कैपिटल A की जगह तो आपको मिल रहा है स्मॉल a स्क्वायर और कैपिटल B की जगह है स्मॉल b स्क्वायर। कनेक्ट कीजिए आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही फॉर्म दिख रहा है हमें। और अब जब ये एक्सप्रेशन हो तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की जगह तो आपका है a स्क्वायर प्लस b की जगह आपका है स्मॉल b स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर। With this we take here the factors of this expression as a square plus b square whole square. ये factors हो गए इस दिए हुए expression के। यहाँ हमने इस 4 को split कर दिया 2 into 2 के फॉर्म में, और इससे ये perfect square term हो गई, ये perfect square term हो गई। सेंटर में हमने दोनों ही तरफ से 2 को मल्टीप्लाई किया अगर, तो ये सेंटर टर्म भी हमें मिल गई और ये फॉर्म आ गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्म में। और तब हमने यहाँ रिलेट किया, ये कैपिटल A नथिंग बट स्मॉल a स्क्वायर, कैपिटल B इज नथिंग बट स्मॉल b स्क्वायर, एंड देन वी हैव रिटन दिस फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट वी टेक हियर क्वेश्चन 2, फैक्टराइज। हियर वी आर हैविंग only 2 terms and that 2 square terms with a minus sign. So this is a difference of 2 squares. And which identity will be applied? We discussed in our previous class. Here we will apply the third identity which says that a square minus b square, this is equal to a minus b into a plus b. This is the third identity, and here we will see that it will be applied 4p square minus 9q square. This can be written as 2p whole square, and this one minus 3 and here q and whole square, 3q whole square. इस तरह से हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को 2p whole square minus 3q whole square इस फॉर्म में लिख दिया है। अब आप देखेंगे दो स्क्वायर टर्म्स का डिफरेंस हो रहा है,
और ऐसे में ये फॉर्म आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कैसे ओपन होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। ए की जगह आपके पास है 2p और b की जगह क्या है 3q, एंड सो दिस विल बी 2p माइनस 3q, एक बार इनके बीच में माइनस और एक बार इनके बीच में प्लस, 2p plus 3q. Here we have written the reason. Since we have this relationship, here we have the factors 2p minus 3q, 2p plus 3q of this expression. तो कितना सिंपल है, इजी है, दो लाइन के आंसर्स हैं, बस आपको रिलेट करना आना चाहिए, एंड आई होप यू आर वेरी वेल एबल टू डू. नेक्स्ट वी टेक हियर 63a square minus 112b square. Now we see that there are two terms, and also we see a square and b square. But we find that 63 is not a square term, and also 112 is not a square term. So there is something that we are missing. What we should do? Here we see that we need to take the common factor out. And which is that common factor? We see 63 and 112. Both are divisible by 7, and so first we need to take out the common factor 7, and then we see what we have. Here we take 63a square minus 112b square. यहाँ पर 7 लेंगे हम बाहर, और फिर अंदर क्या रहेगा, 7 की टेबल में 63, सोचिए कितनी बार आता है, it comes 9 times. So 9 will be there, and also a square, then minus. Now think of the table by which if we multiply 7 we get 112. तो यहाँ आप 112 को डिवाइड भी कर सकते हैं 7 से. In case you have forgotten the tables, you can divide by 7 and then you will have it as 16 times. So what we see here, we can take 16b square. 7 into 16 is 112, and then b square. In this way, now just look at these two terms. Are these square terms? आप देखेंगे अब 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक्चुअली अब ये हो गया दो स्क्वायर टर्म्स का डिफरेंस, और अब हम अप्लाई कर पाएंगे थर्ड आइडेंटिटी. सो हियर वी राइट 7, दिस कैन बी रिटन एज 3a होल स्क्वायर. 9 3 का स्क्वायर होता है और a स्क्वायर इज a स्क्वायर, माइनस 16 की जगह आ जाएगा 4 बिकॉज 4 स्क्वायर इज 16, एंड देन वी राइट b 4b whole square. This is 16b square. Now this is of the form a square minus b square, or should I write capital A and capital B, because here we have small a small b in the question itself. So we can write a square, or in place of a let me write it as x square minus y square. This is equal to x minus y, x plus y. This is the identity that we can write in terms of any variables. अब क्योंकि क्वेश्चन में a और b हैं, तो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स जो शो कर दिए वो x और y ले लिए, and since now this given expression is of the form x square minus y square, the factors will be 7 into 3a minus 4b, 3a plus 4b. This is the answer, and here we have the reason. Since we have x square minus y square इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. ओके, तो इस रिलेशनशिप से हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, और वो क्या है 7, 3a माइनस 4b, 3a प्लस 4b. ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट वी टेक हियर 49x स्क्वायर माइनस 36. इट्स सिंपल, आप देख सकते हैं 49 और 36 दोनों ही स्क्वायर्स हैं, और ऐसे में हम देख रहे हैं दो टर्म्स हैं, स्क्वायर टर्म्स हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स. So the third identity will be applied. We take the question 49x square minus 36. This can be written as 7x whole square minus 6 square. Now this is of the form a square minus b square, and this can be written as a minus b into a plus b. And so here, since we write this way, this will be 7x minus 6, 7x plus 6, and we have the reason along this side. Okay, we have written here the reason, and this is the answer. ये reason लिखा है और ये आपका आंसर है, ठीक है. और reason क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, और ये भी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म हो गया, और इसलिए इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 7x माइनस 6,
7x प्लस 6। अगेन रिमेंबर यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं तो ब्रैकेट लगाकर हमने स्क्वायर किया है, यहाँ सिंगल वैल्यू है 6, इसलिए हम ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी ठीक है, लगाएं तो भी ठीक है। नेक्स्ट वी टेक हियर 16x रेज टू पावर 5 माइनस 144x रेज टू पावर 3। यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 भी एक स्क्वायर टर्म है, 144 भी स्क्वायर टर्म है, लेकिन x रेज टू पावर 5 और x क्यूब ये तो स्क्वायर टर्म्स नहीं है, पर हम यहाँ देख रहे हैं दो ही टर्म्स हैं और बीच में माइनस है। समथिंग इज मिसिंग, व्हाट वी शुड डू हियर? यस, फर्स्ट वी नीड टू टेक द कॉमन फैक्टर आउट एंड ओनली देन वी विल एबल टू अप्लाई द आइडेंटिटी। लेट अस सी फर्स्ट बाय टेकिंग द कॉमन फैक्टर आउट। कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई कीजिए, क्या है? वी सी 16 इज द कॉमन नंबर हियर। 16 की टेबल में 144 भी आता है, जस्ट थिंक ऑफ द टेबल ऑफ 16 एंड ऑल्सो वी सी x इज कॉमन इन बोथ दीज टर्म्स, और x के लिए हम लेंगे लोएस्ट पावर को कॉमन, और लोएस्ट पावर कौन सी है यहाँ पर? 3, एंड सो वी टेक द कॉमन फैक्टर आउट। फर्स्ट वी राइट द क्वेश्चन 16x रेज टू पावर 5 माइनस 144x रेज टू पावर 3। एक तो 16 कॉमन हो जाएगा और फिर x की स्मॉलेस्ट पावर है 3, तो x क्यूब को हम कॉमन लेंगे, और अब अंदर क्या आएगा? 16 तो बाहर आ गया है, x रेज टू पावर 5 है, 5 में से 3 बार जो x है वो तो बाहर आ गए, और अब अंदर कितने होंगे? x स्क्वायर। यू कैन सी x पावर 3 इंटू x पावर 2, इफ़ वी मल्टीप्लाई इट विल बी x रेज टू पावर 5, 3 प्लस 2 हो जाएगा। हमने पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन थिंक दैट x रेज टू पावर 5 इट इज़ नथिंग बट x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x, एंड दिस इज x क्यूब एंड दिस इज x स्क्वायर। अब x क्यूब तो बाहर चला गया और x स्क्वायर अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के। यही हमने किया, x क्यूब बाहर है और x स्क्वायर अंदर है। इन दिस वे यू कैन कनेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस है, 16 इंटू वॉट? इट विल बी 9 टाइम्स। 16 9 is 144, so 16 into 9 you can also divide 144 by 16 and get this number. And now x cube is outside, so it will be x square minus 9 itself and nothing else will come inside. So here we have this expression. हमने यहाँ पर common factor को बाहर ले लिया और अब ये expression हमें मिल रहा है. What we see next? This can be written as 16x cube and here we have x square minus 3 square. 9 को हम लिख सकते हैं 3 square और अब ये कौन सा फॉर्म हो गया? a square minus b square. तो यहाँ हम लिख लेंगे 16x cube x minus 3 x plus 3. एक बार माइनस एक बार प्लस इनके बीच में एंड गिव द रीजन सिंस a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. Using this identity we have written these factors. Okay, it's okay now. We now take the next one, L plus m whole square minus L minus m whole square. Here we see the expression related to the first identity and the second identity. But should we apply the first and the second identity? क्या अभी हमें first और second identity apply करनी चाहिए या हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ये है कुछ फॉर्म इस तरह का a square minus b square. दो स्क्वायर्स का डिफरेंस हो रहा है यहाँ तो हमें यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई करने की बजाय अब थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करनी चाहिए. a की जगह आप देख सकते हैं पूरा है ये l plus m और b की जगह आप देख सकते हैं इट इज l minus m. So here we will be applying the third identity. We write the expression once again, L plus m whole square minus L minus m whole square. This can be taken as L plus m plus L minus m. एक बार तो इनके बीच में हम प्लस कर रहे हैं और एक बार हम इनके बीच में माइनस करेंगे. L plus m minus L minus m. Why we have written this? Since a square minus b square it is equal to a plus b into a minus b. Since we have this identity, that's why we have written this one. This can be taken as a square and this can be taken as b square and then we have minus in between. तो ये हो गया a plus b, a minus b. ठीक है,
यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज L प्लस M प्लस L माइनस M। ये ब्रैकेट ओपन कर दिया और क्योंकि बाहर प्लस है तो सिंबल्स में चेंज नहीं आएगा, इट विल बी रिटन एज इट इज़। एंड नाउ हियर वी टेक L प्लस M और अब यहाँ माइनस है तो सावधान हो जाइए, साइन चेंज होंगे। माइनस L and minus minus it will be plus M. In this way we have opened the bracket minus L and then minus minus plus M. तो इस तरह से जब माइनस हो तो ध्यान से खोलेंगे ब्रैकेट को। What we see next? M minus M ये कैंसिल हो रहे हैं। Here also L minus L will be cancelled. Then we will be left with L plus L. It will be 2L. यहाँ पर L और L प्लस हो रहे हैं तो 2L not L square। अगर हमारे पास L इंटू L होता है तब तो L स्क्वायर करते हैं और L प्लस L होगा तो 2L लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दिस इज जस्ट द रफ वर्क, इट शुड बी वेरी मच क्लियर। एंड देन हियर वी हैव मल्टीप्लाई, व्हाट इज एल्स? M प्लस M, so it will be 2M. Then 2 into 2 it will be 4 and L into M will be LM. So 4LM, this is the answer. These are the factors of this expression. देखिए कितना easy हो गया लास्ट में आंसर। तो यहाँ हमें जहाँ पहले देखते ही लगा कि फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकेंड आइडेंटिटी से एक्सपैंड करना चाहिए, वहाँ पर हमने इसको थर्ड आइडेंटिटी से यूज़ करते हुए a प्लस बी a माइनस बी इस फॉर्म में एक्सपैंड किया और फिर आंसर मिल गया। इन केस यू अप्लाई द फर्स्ट एंड द सेकेंड आइडेंटिटीज ऑल्सो, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। अगर आप चाहें तो एक बार वैसे भी हम कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। We take the next page. We have L plus M whole square minus L minus M whole square. अगर आप फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई करें तब भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा। One question can be done in many different ways. So if we apply, we will get L square plus M square plus 2LM, the first identity, and minus, here we can take L square minus 2LM plus M square. यहाँ हमने second identity apply की। This will be L square plus M square plus 2LM और यहाँ पर minus L square minus minus plus 2LM and minus plus it will be minus M square. तो ये माइनस से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो सिम्बल्स चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2LM एंड देन माइनस प्लस इट विल बी माइनस M स्क्वायर। नाउ वी कैन कैंसिल L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, M स्क्वायर माइनस M स्क्वायर एंड वी विल बी लेफ्ट विद 2LM प्लस 2LM। देखिए 2LM एंड दिस इज इक्वल टू 4LM। इन दिस वे ऑल्सो वी गॉट द सेम आंसर। तो अब आपके ऊपर है, आप इस मेथड से करिए या फिर आप इस मेथड से थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टेक हियर 9x square y square minus 16. Again we see there are two terms and both side we have square terms with a minus sign in between. Difference of two squares and again the third identity will be applied. We can write the question 9x square y square minus 16, we can write it as 3xy whole square. देखिए 9 किससे मिलेगा? 3 का स्क्वायर करने से, x स्क्वायर मिलेगा x का स्क्वायर करने से और y स्क्वायर मिलेगा y का स्क्वायर करने से। So we will have 3xy whole square in place of 9x square y square. Then minus 16 can be written as 4 square. Now here since we have only a single value, we have not applied the bracket. Here we have 3 values and so the bracket is compulsory. Now this is of the form a square minus b square and this will be a minus b into a plus b. Since we can apply this identity, we write here 3xy minus 4, 3xy plus 4. This is the answer. These are the factors of the given expression. Okay, every time write the reason and here we have this answer. Next we take x square minus 2xy plus y square and then minus z square. Look at this expression and think how to collect this expression. Just think of it till I rewrite the question. Here we have this part.
और अब आप देखेंगे ये और कुछ नहीं बल्कि सेकेंड आइडेंटिटी का ही एक्सपैंडेड फॉर्म है. थिंक ऑफ दैट एक्सप्रेशन, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. और इसीलिए बाय द रिवर्स ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी वी कैन राइट इट एज x minus y whole square, and then we have minus z square using identity second. Give the reason for each step. तो सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई की, यहाँ पे ये हो गया आपका फॉर्म a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्म है. और इसको हम कैसे लिखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर. तो अब a और b की जगह x y है, तो हमने यहाँ पर x माइनस वाई होल स्क्वायर लिख लिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी सी हियर, वी हैव टू स्क्वायर्स विद अ माइनस साइन इन बिटवीन. अब हो रहा है दो स्क्वायर्स का डिफरेंस. और अब हम अप्लाई करेंगे थर्ड आइडेंटिटी. वी कैन राइट हियर x माइनस वाई माइनस जेड एंड x माइनस वाई प्लस जेड, वाई using the third identity. And give the reason also. Using the identity you can show the identity also. a minus b, a plus b. आप identity भी show कर सकते हैं. And so we can write x minus y minus z, x minus y plus z. These are the factors of the given expression. Okay. Next we have this one. 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square. Here we see there are 4 terms and we are unable to find any factor that is common to all these 4 terms. So the common factor method will not be applied here. Also, if you regroup the terms, taking two terms together also, then also we will not be able to factorize this expression. What is special about this expression? Look at this term. It is having b square. Here we have c square and here we have bc. Now we will be connecting these 3 terms, and first we write this question again. 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square. Now what we see, we can rewrite this expression by taking this minus out as the common factor in these 3 terms. हम यहाँ से माइनस को बाहर कॉमन ले रहे हैं और रिमेनिंग टर्म्स अब हम अंदर लिखेंगे. किस तरह से? वी विल सी हियर, वी विल हैव 4b स्क्वायर. अब यहाँ पर ये माइनस बाहर लिया है तो सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. ये प्लस 28 है, यहाँ हो जाएगा माइनस 28bc, और फिर ये माइनस से ये हो जाएगा प्लस 49c स्क्वायर. ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो ये प्लस हो गया. यहाँ इस प्लस को आप समझ सकते हैं माइनस इंटू माइनस, जिसमें से एक माइनस बाहर चला गया और एक माइनस अब अंदर आ गया. इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं. इन शॉर्ट, whenever we take minus out as the common factor, the sign of each term will be changed inside the bracket. हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. Now in this case, let me rewrite the first term 25a square minus, now we can write 4b square as 2b whole square. This we can write as 7c whole square. और अब अगर हम बीच में 2 से मल्टीप्लाई करें 2b और 7c को, और चेक कीजिए क्या ये प्रोडक्ट है 28bc के इक्वल. 2 2s are 4, 4 7s are 28bc. तो ये 28bc के इक्वल आ रहा है प्रोडक्ट. तो अब ये एक्सप्रेशन किस तरह का हो गया? दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी. जस्ट रिकॉल द सेकेंड आइडेंटिटी. क्योंकि यहाँ पर b पहले से ही है, हम सेकेंड आइडेंटिटी को x और y की टर्म्स में लिखते हैं. इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ये है आपकी सेकेंड आइडेंटिटी. और इसको हम कैसे लिखते हैं? x माइनस वाई होल स्क्वायर. इस फॉर्म में लिखते हैं बाय सेकेंड आइडेंटिटी. इस फॉर्म में लिखते हैं और वही हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ दिस एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट. इसको यहाँ लिखते हैं 25a स्क्वायर माइनस, नाउ दिस विल बी 2b फ्रॉम हियर, 7c फ्रॉम हियर, और क्योंकि ये माइनस है बीच में तो माइनस, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर. बाय आइडेंटिटी सेकेंड वी हैव दिस एक्सप्रेशन गिवन बाय दिस वन. तो यहाँ पर हमने 2b लिया, यहाँ से 7c और बीच में माइनस है तो माइनस लगा के होल स्क्वायर कर दिया. अब हमारे पास ये रिजल्ट आया, पर अभी भी हमारे पास फैक्टर्स नहीं आए.
फैक्टर्स कब मिलते हैं? जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तब हम कहते हैं ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आना चाहिए। यहाँ हमें कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, तो अभी काम बाकी है। क्या करेंगे? वी सी 25a square कैन बी रिटन एज 5a होल स्क्वायर एंड माइनस वी हैव 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दो स्क्वायर्स का डिफरेंस हो रहा है, और ऐसे में हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? a प्लस b, और सेकंड हो जाएगा आपका a माइनस b, 2b माइनस 7c। ये उस फॉर्म का हो गया। क्या आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं? लेट मी मेक सम स्पेस फर्स्ट। अगेन, यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड विच सेज that x square minus y square it is equal to x minus y into x plus y। ये आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। देखिए कैसे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या कह लीजिए यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उस फॉर्म का है। तो x की जगह 5a, y की जगह पूरा ये 2b माइनस 7c। तो x प्लस वाई हो गया, ये x प्लस वाई। लेट मी राइट इट विद डिफरेंट कलर टू हाईलाइट। This is of the form x plus y and this is of the form x minus y, जहाँ पर ये क्या है? x स्क्वायर और ये है y स्क्वायर और ये माइनस। समझ रहे हैं आप? तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, यही आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली। बस अब अंदर जो ब्रैकेट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, खोलेंगे, एंड देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, द फैक्टर्स। लेट मी राइट देम here. This will be 5a, or let me make some more space. I need to write it below this reason here. This will be 5a plus 2b minus 7c, क्योंकि प्लस से तो कोई डिफरेंस आता नहीं है, ये माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे आगे वाली टर्म्स के। 5a माइनस 2b, और यहाँ ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस 7c। देन दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। और अब आप देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फैक्टर्स, और ये हैं दोनों गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज़ अ लिटिल बिट लेंदी क्वेश्चन। व्हाट वी सॉ, ये एक्सप्रेशन था जहाँ पर हमने इन तीनों टर्म्स में कनेक्शन देखा, क्योंकि b और c इनमें है, पहले फर्स्ट और इसमें स्क्वायर फॉर्म में है b और c, और फिर हमें बी सी बीच में दिख रहा है। तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ सेकेंड आइडेंटिटी जैसा केस दिखाई दे रहा था, तो हमने इसे रीराइट करा, और यहाँ से लास्ट थ्री टर्म से हमने माइनस को कॉमन लिया, जिससे ये एक्सप्रेशन मिला। इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया इस फॉर्म का x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म का, रिलेटिंग टू आइडेंटिटी सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं 5a होल स्क्वायर, और ये है ही स्क्वायर फॉर्म में, तो दो स्क्वायर्स का डिफरेंस हो रहा है। बस अब थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई की, और इन टर्म्स के बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस लेते हुए हमें ये फैक्टर्स मिल गए। So these were the first two questions from exercise 14.2. I hope all these questions are very much clear to you. You enjoyed doing these questions, as these are very simple and easy questions. In our next class, we will be completing this exercise. You can practice those questions also again, first yourself, and then we will be doing here in this class. Bye for now.